بن عبدالعزیز جیسے غلام تخت کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ایسے شرابیوں کو چوکوں کے اندر لٹکا دیا جائے گا. اسی طرف اشارہ کر کے بریلی کا بادشاہ فرماتا ہے کہ لطف ملک کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ارے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہوتے ہوتے نام ہو ہی جائے گا، لطف ملک کا عام ہو ہی جائے گا. اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، جلدی نہ کرو کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. آقا کی غلامی میں دین کا کام کیے جاؤ، ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو بھی اونچا فرما دے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ارے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف ملک کا عام ہو ہی جائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ پہ کروڑ مرتبہ درود و سلام کی نذرانے پیش کرنے کے بعد مجاہد اہل سنت، محسن اہل سنت، میرے برادروں، اس ذرہ ناچیز کو اتنی عزتوں سے آپ کے سامنے پیش کرنے والے حضرت علامہ مولانا محمد ارشد قربانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ اور آپ کے صاحبزادگان، آپ کے بلائے ہوئے مہمانان ذی وقار، نکاح میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، میں آپ لوگوں کے ناموں سے ناواقف ہوں، لیکن جس مالک کے گھر میں آپ بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جن اجمال آقا کی محبت میں آپ آئے ہیں وہ بھی، ہم سب کے نام بھی جانتے ہیں، ہم سب کی محبتوں کی اوقات بھی ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے ان چند لوگوں کو جو ہم نے اس کے دین کی یاد کے لیے وقت دیے اپنے کرم سے قبول و منظور فرمائے. آبام ذی وقار کوئی لمبا چوڑا کتاب نہیں، 3:30 بجے میں نے ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے، تو کچھ باتیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے سامنے اپنا باپ ضمیر صحیح انداز میں بیان کر پاؤں گا نہیں، لیکن مجھے اس سے درس نہیں ہے کہ اس کا بعد میں ریئیکشن کیا ہو، آپ کیا سمجھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں وہ بات کروں گا جو اپنے ایمان سے سمجھوں گا کہ میرے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ. خوشامد جو ہے یہ ایک زہر قاتل ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہمارے یہاں سے بے شمار داستان بھی مل جاتے ہیں، علماء بھی مل جاتے ہیں جو 1 منٹ میں جنت کی ٹکٹیں بھی بانٹ دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت ملے گی تو حضور کی غلامی سے. دعویٰ غلامی ایک الگ چیز ہے اور حقیقت غلامی ایک الگ چیز ہے. تو آج بس یہی سمجھانے کے لیے فقیر حاضر ہوا ہے، اور یہ فکری نشست کا
بات کی فکر کریں کہ ہم آئے کس لیے تھے دھرتی پہ اور ہم نے کیا کیا. بحیثیت مسلمان کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ آپ ذرا سبحان اللہ بولیں. میں قربانی سب کو اجازت ہے کہ مہمانوں کو ویلکم کرتے رہے. آنا جانا آپ کا میں مہمان ہوں. آپ ذرا ہمارا گوش ہو کے بات سنیں, محبت سے بولیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا مہربان ہے. پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, ہم نے اس شفقت کرنے والے مہربان آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جس نے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں کھانا دیا, خوراک دی, ہمیں اپنی مرضی کی کروٹوں پہ لٹایا. اللہ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ تیرا مولا جس نے تجھے بنایا اور متوازن بنایا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. تجھے ایسی صورت دی جیسی وہ چاہتا تھا ویسی صورت میں تجھے بنا دیا. ایک مقام پہ فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی اللہ جو تمہاری شکلیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر جیسی چاہتا ہے ویسی بنا دیتا ہے. آج اللہ کے حبیب کے نام پہ اکٹھے ہونے والوں, اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں, ایک فقیر تم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے. کبھی اس بات پہ بھی آپ نے غور کیا وہ چاہتا تو ہمیں سانپ بچھو کی طرح حقیر مخلوق بھی بنا سکتا تھا, تو چاہتا تو ہمیں ہاتھ پاؤں سے معذور بھی کر سکتا تھا, وہ چاہتا تو ہمیں جانوروں کی طرح زمین پہ منہ مار کے روٹی کھانے کے لیے مجبور بھی کر سکتا تھا, وہ چاہتا تو سانپ کی طرح ہمیں اپنا سینہ اور پیٹ رگڑ رگڑ کے چلنے پہ مجبور بھی کر سکتا تھا. اس نے ہمیں ہاتھ دیے, پاؤں دیے, عزت کے ساتھ بولنے کے لیے زبان دی, عزت کے ساتھ جینے کے لیے گھر دیا, رہنے کے لیے مالک کے کائنات نے دھرتی اور مسکن عطا فرمایا. ہم نے اپنے مالک کے ساتھ کیا کیا کبھی دیکھے تو صحیح مسلمانوں, ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا. وہ ہمیں پکارتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, اس کے گھر سے آواز آتی رہی, ہم نے اس کے گھر کی طرف آنا بھی گوارا نہ کیا. ایک چیئرمین, ایک کونسلر, ایم پی اے, ایم ایل اے, ایک آدھی آواز دے تو بھاگ کے جاتا ہے کہ ہمیں ایم پی اے نے یاد کر لیا, ہمیں ایم ایل اے نے یاد کر لیا. اور شرابیوں کی آواز پہ آدھی رات کو دوڑنے والوں, بدماشوں کی ایک ٹال کے اوپر رات کو اٹھ کے بچوں کو چھوڑ کے جانے والوں, رب کائنات کے گھر سے 5 بار آوازیں آتی رہی. آپ لوگوں نے اس کے گھر کا رخ کرنا بھی گوارا نہ کیا, حالانکہ وہ اتنا قریب. آپ جب اداس ہو کے ایک بار پکارے ہو میرے اللہ, وہ نہیں کہتا کہ میں نہیں سنتا, وہ تو پھر بھی فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں سنتا ہوں, قبول فرماتا ہوں جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارے. وہ تو پکار سننے والا, وہ تو ہم لوگوں کی صدا میں جب بھی پکارے 70 بار لبیک لبیک کی آمدی کہنے والا. بندے میں حاضر بول کیا مانگنا چاہتا ہے. ہر روز آدھی رات گزرنے کے بعد اپنی رحمت کے سارے دروازے کشادہ فرما دینے والا, آسمان اول تک اس کی رحمت کے جلوے آ جاتے ہو. اور وہ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کوئی مانگے میں جھولیاں بھر لوں, لیکن افسوس ہم ساری رات جاگتے رہے, ہم ساری رات ٹی وی میں, ہم ساری رات جناب اعلیٰ انٹرنیٹ میں پکڑ رہے. جب رحمت لوٹنے کا وقت آیا تو ہم چادر تان کے سو گئے. کیا یہ سلوک ہوتا ہے احسان کے بدلے میں؟ کیا یہ سلوک ہوتا ہے کرم کے بدلے میں جو ہم نے کیا ہے اپنے مولا کے ساتھ؟ ایسا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسے ہم نے اپنے مولا کے ساتھ کیا. ایسا تو کوئی ایسے اجنبیوں کو بھی نہیں بھول جاتا جیسے ہم نے اپنے مولا کو
भुला दिया। मुसलमानों इतना याद रख लो वो करीब है, आज भी मौका है, क्या बूढ़े क्या जवान क्या बच्चे सबको दावत देने लगा हूँ। खास तौर पे उन बुजुर्गों को, तेरे बाप दादा की उम्र वाले कई लोग यहाँ पे बैठे, दाढ़ी सफेद हो गई फिर भी शेव करके आए हुए, मेरे दोस्तों सर के बाल सफेद हो गए फिर भी नमाजों से गाफिल रह जाने वाले, मुस्तफा की शरीयत से दूर रहने वाले, उन सब के आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, सियासी पार्टियों के पीछे अपनी इज्जतों को दांव में लगाने वालों, आज मौका है खुदा के लिए, इस बरकत वाले महीने के अंदर अल्लाह के नाम पे यकजा हो जाओ, इस बरकत वाले महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ। आओ मैं आप लोगों को 1400 साल पहले का एक मंजर पेश करता जाऊं, जब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका दौर हुकूमत है और एक गवैया गाने गाने वाला जब तक दीन मदीने में नहीं दाखिल हुआ था तब वो गाने सुनाता था, जब दीन मदीने में दाखिल हो गया तो वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया, लोगों को गीत सुना के पैसे लेने वाला, ताकि जब जहां के आलम दीन का डंका बजने लगा उसके गाने सुनने के लिए कोई ना आया। आज मैं इसलिए तो हम कहते हैं कि इस्लाम को ले आओ, क्योंकि इस्लाम होगा तो फिर गुलकारों और कचरों की कदर नहीं होगी, फिर कदर होगी तो ऐसे उलमा की होगी, फिर कदर होगी तो कारी कुरान की होगी, फिर कदर होगी तो दीन सुनाने वालों की होगी। उस वक्त दीन से पहले उस गुलकार की कदर थी, जब दीन आया तो उसकी कदर खत्म हो गई। अब क्या हुआ, बूढ़ा हो गया, 70 साल का बूढ़ा, जब कहीं से पैसा ना मिला परेशान हो गया, जब कहीं से रोटी ना मिली तो उदास हो गया, ऐसे जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में आया और रो के कहता है मेरे मौला जब तक इस गले में राग थे दुनिया सुनती थी, जब तक इस गले में सोच था ज़माना बुला बुला के दाद देता था, आज मेरे गले में वो सोच भी नहीं रह गया, आज मेरी तलब करने वाला भी कोई नहीं रह गया, आज मुझे इज्जत देने वाला भी कोई नहीं रह गया, आज मैं किसी को क्या सुनाऊं, आज मैं रोटी लेने के लिए किसके दर पे जाऊं, आज मैं तुझे ही तेरी तारीफ सुनाता हूँ, चल तू ही कुछ दे, सब कुछ देने वाला मौला जब उसकी दर्द भरी आवाज को जगाने वाला समाज फरमाया, फौरन हजरत उमर को आवाज आई है, मस्जिद नबी के अंदर सोए हुए आवाज आई, उठ उमर बकी में जा, हमारा यार भूखा बैठा हुआ है, हमारा महबूब बंदा भूखा बैठा हुआ है, तू यहाँ पे सोया हुआ है, उठ जाओ के बोल, जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचा दे। मुस्तफा करीम के गुलामों, उमर जैसा गैरतमंद बादशाह जब दौड़ के जाता है तो वो बूढ़ा उमर को आते देख के खौफजदा होके दौड़ पड़ता है, ये मारेगा कि मैं गुलकार हूँ, लेकिन आप फरमाते बाबा रुक जाओ, मैं खुद नहीं आया, मुझे मौला ने भेजा है, मैं खुद नहीं आया, मुझे मौला ने भेजा है, मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ। तो उस वक्त वो कहने लगा कि क्या कह रहे हो उमर, फरमाया उमर ने तुम्हें पता है जब से इस्लाम कबूल किया कभी झूठ नहीं बोला, उमर सच कह रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे मौला ने फरमाया मेरा महबूब बंदा बैठा, मेरा यार बैठा है, जा उसको रोटी खिला, इतने सुनने की देर आसमान की तरफ मुंह करके काम हुआ मेरे करीब मौला, 70 साल तक कभी भी तुझे याद न किया, आज याद किया तो अपने पेट के लिए किया, और तू कितना करीब है, मुझे ताना भी नहीं मारा, मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मरवाया, अपनी सारी मेरी खताओं को दरगुजर फरमा दिया, वाह करीब तेरे कर्म के क्या कहने। इसलिए तो मियां मोहम्मद बख्श पंजाबी के सूफी शायर ने फरमाया था कि अदल करे थर थर कंपन ऊंचिया शान वाले, पर फजल करे बख्शे जान मैं वर्गे मुकाले। मुस्तफा करीम के गुलामों जरा
ताल्लुक को किस तरह तोड़ा। हमने देखे तो सही अपने मौला के साथ अपने ताल्लुक को कैसे मुनक़ता कर लिया, हालांकि वो ताल्लुक दोबारा मजबूत करते हुए एक बार भी नहीं पूछता इतने साल कहाँ पे रह गया। अब आया है जब बूढ़ा हो के आ गया, अब आया है जब खताओं के ढेर लगा के आ गया है, उसके दरवाजे पे ताना नहीं मारा जाता, उसके दरवाजे पे तो करम के रंग में रंग दिया जाता है। मुसलमानों हमने क्या किया, हमने अपने साथ क्या किया, अपनों के साथ क्या किया, हमने अपने मुसलमानों के साथ क्या किया, रब की मखलूक के साथ क्या किया। कभी देखा आप लोगों ने रमजान का महीना आया, हमने जनाब रोजेदार भी बड़े देखे, रोजा खाने वाले भी बड़े देखे, लेकिन मैं बात उनकी करता जाऊं जो रोजा रखने वाले थे। साहब तुमने सहरी में अच्छा खाना खाया, पूरा दिन तू भूखा रहा, तुझे भूख लगी तूने खाना न खाया, प्यास लगी तूने पानी न पिया। तेरा एक सवाल, खाना तेरे घर के अंदर पड़ा है, खाता क्यों नहीं? तो कहा इसलिए कि मेरे रब ने रोका है, मैं नहीं खाता, पानी नहीं पीता, मेरे रब ने रोका है, मैं नहीं पीता। आज मैं कुर्बानी साहब के इस मरकज के अंदर एक सवाल करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं आप लोगों से इतना सवाल करना चाहता हूँ, मुझे एक बात का जवाब दो, क्या उस रब ने सिर्फ रोटी खाने से मना किया है रोजे की हालत में, या गीबत करने से भी मना किया है? क्या मेरे भाइयों उस रब ने सिर्फ पानी पीने से मना किया है कि मुसलमानों का खून पीने से भी मना किया है? ओ ज़खीरा अंदोज़ी करने वालों, 80 रुपए किलो खजूर लेकर स्टॉक कर देने वालों, रमजान में 220 की बेच के फख्र करके कहने वालों, मैं इत्काफ मदीने में बैठता हूँ, मैं इत्काफ मक्के में बैठता हूँ, हुजूर की उम्मत को रुला के आका के दरवाजे पे किस मुंह से जाता है कोई? अल्लाह की मखलूक को सता के उसके काबे में किस मुंह से बैठता है कि मैं आ गया हूँ? इतना याद रखो, तुम्हें काबे का तवाफ इतना फायदा नहीं दे सकता जितना अल्लाह की मखलूक में मेहरबानी वाला अमल फायदा दे सकता है। मुसलमानों कभी सोचो तो सही, हमने क्या किया? हमने इफ्तार पार्टियों में भी बड़े बड़े पराठों वाले कारों वालों को बुलाया, जो घरों में खा सकते हैं उनको बुलाया, छोटे छोटे फ्लाइटों में 10-10 बच्चे रखने वाले उस गरीब मजदूर के बच्चों को हमने अपनी कोठी में घुसने न दिया, इसलिए कि जनाब आला इनके कपड़े हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं, इनका खाना या इनके खाने का तरीका सलीका हम जनाब शऊर वाले लोगों के मुताबिक नहीं है। ऐसे शऊर को आग में डालो, आग में जाए ऐसा शऊर जो अल्लाह की मखलूक के दरमियान दीवारों को खींच दे। ऐसा शऊर किस नाम से, किस मुंह से आप नाम लेते हैं जनाब आला इस्लाम का, किस मुंह से आप नाम लेते हैं हुजूर की गुलामी का? मैं ये सिर्फ अमामुन्नास को नहीं कहूंगा, मैं उन नाम निहाद पीरों और जैली आमिलों को भी कहूंगा, उन बदमाश लोगों को भी कहूंगा जो लोगों के सामने बड़े सूफी बनते हैं कि हम जनाब आला आवाम की खिदमत करने वाले। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह की मखलूक को अपने पास बिठा के खिलाते हुए शर्मिंदगी का एहसास करने वालों, रब की मखलूक को अपने पास बिठा के उनके फटे पुराने कपड़ों को अपने और उनके दरमियान दीवार और आड़ महसूस करने वालों, मेरा एक सवाल है, कभी अपने आप से सवाल करना, और कभी अगर कोई ऐसे वीआईपी पीर का मुरीद है तो अपने उस वीआईपी बदमाश पीर से एक सवाल करे, पीर जी तेरे जैसे करोड़ों पीर मुस्तफा की नालैन पे मैं सदके कर दूं, मैं आपको हुजूर की बारगाह में लेके चलता हूँ। जब मेरे सरकार के गुलाम हजरत अबू हुरैरा भूख की शिद्दत से आप फरमाते हैं कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैंने हजरत अबू बकर उमर से कुछ पूछा, सवाल किया, सवाल और था, मतलब ये था मेरी हालत पहचानेंगे कि मैं भूखा हूँ, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब तो दिया पर मेरी हालत न समझी कि मुझे मेरी कैफियत क्या है। जब हुजूर आए, अबू हुरैरा ने सवाल किया, वो लजवाला का उनकी नजरों से क्या पोशीदा, उनकी नजरों से क्या पोशीदा, अल्लाह कलम जिनके सामने हो, उम्मती का हाल उनसे कैसे पोशीदा रह सकता है। मुस्तफा करीम के गुलामों अबू हुरैरा को लेके आए, आप फरमाते हैं कितनी देर के अंदर
बाहर से दूध का एक प्याला आता है। रिवायत आपने कई बार सुनी, मैं उसमें से एक नुक्ता पेश करने लगा हूँ। जिस वक्त दूध का प्याला आया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं खुश हो गया। सरकार वालों ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ असहाब सुफ़ा के बाकी 70 बंदों को भी ले आओ, उनको भी ले आओ। दिल में ख्याल आया एक मैं भूखा, एक प्याला, 70 बंदे और आएंगे तो घूट घूट भी नहीं आएगा। दिल में ख्याल किया, पर सोचा जिसने हुक्म फरमाया है वो हिकमतों को मुझसे ज्यादा जानने वाला। अब 70 आ गए। सरकार ने फरमाया ले अबू हुरैरा अपने हाथ में पकड़ इनको पिलाना शुरू कर। कभी आपने सोचा सरकार ये भी तो कर सकते थे कि फरमाते अबू हुरैरा तुझे ज्यादा प्यास लगी है, भूख लगी है, पहले खुद पी ले बाद में इनको पिलाना, लेकिन नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अबू हुरैरा पहले इनको पिला, बाद में देखा जाएगा। किस लिए? क्योंकि पेट भर के तो सब खिलाते हैं, भूखे पेट जो खिलाता है वही मुस्तफा का सच्चा गुलाम होता है। पेट भूखा हो फिर भी अल्लाह की मखलूक के दर्द को समझता हो, वही हबीब खुदा का सच्चा आशिक होता है। मुस्तफा करीम के गुलामों, जब 70 बंदों ने पी लिया, अब हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू हुरैरा आप पी लो। जब हजरत अबू हुरैरा ने जनाब आला उसको पीना शुरू किया, पेट भर गया। हुजूर मैं सैराब हो गया। आका फरमाते हैं एक बार फिर भी तुझे बहुत भूख लगी थी, सुभान अल्लाह। दूसरी बार पिलाया, तीसरी बार पिलाया। जब कहने लगे अब तो एक कतरा भी अंदर जाने की जगह नहीं है, मेरे सरकार वालों ने अब क्या किया, 70 बंदे पहले उस प्याले में से पी चुके हैं, 71वां अबू हुरैरा पी चुका है। मेरे आका ने नहीं फरमाया जरासीम लग गए हैं, मेरे लिए जनाब आला नया प्याला लेके आओ। उसी 71 बंदे के झूठे प्याले में से नबी रहमत ने पी के दिखा दिया, गुलामों को पैगाम दे के दिखा दिया कि सूरत मोमिन शिफा, मोमिन से नफरत करने वालों, उसके बर्तनों को अलग कर देने वालों, मोमिन का जूठा पीने से बीमारियां नहीं फैलती है। तुम्हारा नबी फरमाता है मोमिन का जूठा पीने से बीमारियों से शिफाएं मिल जाती है। मुस्तफा करीम के गुलामों, आज वो फिक्र किधर चली गई है, आज वो सोचे किधर चली गई है? कोई है बताने वाला, कोई है इस तरफ तवज्जो करने वाला? इफ्तार पार्टियों के बैनर लगाने वालों, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वालों, बड़े बड़े टीवी चैनल के ऊपर सूट बूट पहना के जनाब अमीरों को शो में बुलाया जाए, जी तो रमजान, इश्क़ रमजान, फलाना रमजान। मैं एक बात का सवाल करना चाहता हूँ, कोई आए इनसे पूछने वाला, नजरों के तकद्दुस को बवाल करने वालों, एक छोटे से इनाम पे मोमिन की बेटियों को पढ़ाना लोगों के सामने पेश करने वालों, तुम किस चीज का जनाब आला, किस चीज का सिला अल्लाह से मानते और उसके हबीब से इसी चीज का सिला मानते हो कि तुम लोगों ने मोहम्मद अरबी की उम्मत को बेपर्दा गैरों के सामने बिठा दिया। इसी चीज का बदला अल्लाह नबी से मांगते हो क्या? इस चीज का बदला मांगते हो? एक रंगी पूरा साल पलीद रहने वाली, जिसको पाकी और पलीदी के मसाइल का पता ना हो, उस जालिम और बदबख्त किस्म की औरत के सामने एक आलिम दीन को जनाब आला इस अंदाज में बिठा दिया जाए कि बोल लगे ये तीसरी किसी दुनिया के रहने वाले लोग हैं, तकीर किस्म की मखलूक है, उनसे बड़े अकड़ के वो दीन जनाब आला सवाल करने वाली हो, जैसे उस्ताद शागिर्दों से पूछने वाला हो। मैं उन मौलाना हजरात से भी कहना चाहता हूँ, मौलाना एक बात याद रखें, हीरे की कदर जौहरी जानता है। मोचियों के पास जाके हीरे पेश करने वालों, कचरों के पास बैठ के दीन के मसले बयान करने वालों, काश आप लोगों को पता होता इज्जत टीवी और केबल से नहीं आती, इज्जत इंटरनेट से नहीं आती, बल्कि कुरान ने वादे उसूल दे दिया है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इज्जत ईमान वालों के लिए। हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, हम लोगों को ये चीज लोगों को समझानी भी पड़ेगी। इस धरती के ऊपर जनाब आला अभी हुजूर की उम्मत के मर्द मर नहीं गए कि औरतों को दीन बताना पड़ जाए। इस धरती के ऊपर अभी जनाब आला उलमा खत्म नहीं हो गए। इस धरती पे जनाब आलिम दीन
मर नहीं गए कि टीवी की रनिया के हम लोगों को दीन के मसले बताती हो। ये धरती पांच नहीं हुई, ये धरती आला हजरत के गुलामों की धरती। ये धरती अब्दुल्ला शाहकाजी की धरती, ये धरती कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह मनूरानी सिद्दीकी की धरती, ये धरती अल्लामा शाह कुरानुल हक की धरती, ये धरती अमजदिया वालों की, ये धरती जनाब आला अल्लामा कुरानी साहब जैसे उलमाए किराम के साथ यहाँ पे मुज़य्यद, यहाँ पे गली गली कूचे कूचे आप लोगों को उलमा नजर आएंगे। मैं कहना चाहता हूँ उलमा को छोड़ के जिस वक्त आप लोग इन बदबख्त लोगों से दीन के मसले सीखेंगे तो इतना याद रखना हशर वही होगा कि जैसे कोई बंदा अपना कीमती कपड़ा दर्जी को छोड़ के मोची से सिलवाने चला जाए, जैसे कोई बंदा अपने दिल का इलाज कराने के लिए दिल के डॉक्टर को छोड़ के दांतों वाले डॉक्टर के पास चला जाए, जिस तरह जनाब आला कोई इंसान अपनी कीमती गाड़ी का जनाब आला उसका चेकअप करवाने के लिए उस मैकेनिक को छोड़ के ट्रैक्टर वाले के पास चला जाए, जो हशर उन चीजों का होगा वही आप लोग अपने दीन का कर लोगे। इतना याद रखना कि हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है, दीन दीन वालों से लेना ही अच्छा लगता है। और याद रखते जाओ मेरे भाइयों, आज की इस फिक्री नशिस्त के अंदर एक बात वाज़ेह है कि दीन को उतनी कदर दो जितनी कदर वाला है। ऊंचा बोले, ये जितनी कदर वाला है। और उलमा से भी गुजारिश है, मशाइख से भी गुजारिश है, हक बोलते हुए इस बात का खदशा नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा। हमने कई लोग देखे इस धरती के ऊपर नाइंसाफी हुई, थाने जुल्मों से भर गए, माओ के बेटे तफ्तीश के नाम पे उठाए गए तो लाशें न मिली, लेकिन उलमा मशाइख सूफिया बड़े बड़े चुप करके हुजरों के अंदर बैठे रहे। इसलिए जी मौलाना हालात खराब है। मैं कहना चाहता हूं उन पीरों से, साहब कभी अपनी तारीख उठा के देखो, आपके दादा पर दादा क्या थे, चलो अभी अपनी तारीखों को आपने देखा हो, आपके दादा ने तो गधे घोड़े पे बैठ के भी दीन सुनाया है।